is so relatable at so many different levels because we've all lived through the journey. But I have a question for Shweta. So Shweta, you happened to mention that, like it is sad that none of us paid attention to the commercial sex workers and the plight that they faced. But during the research, you learned a lot of stories about them. I want to know, as an actor, when you know certain secrets about the community, and how careful or cautious do you have to be for those secrets to not, reflect in your performance and carry that baggage throughout the preparation and the making of the film? Hi, Nawaz. Thank you so much for the question. Um, See, end of the day, no matter what language, no matter what strata of society you belong to, it's end of the day human emotion. Anyone who watches a film, I think the most remembered films are the ones where you remember characters. They are driven by characters. The biggest dialogues that you remember, चाहे वो गब्बर हो या चाहे वो आनंद हो, चाहे वो गीत हो, it's any character in cinema, you remember characters. And I think that's one of the biggest strengths of Madhur Bhandarkar because his heroes are the characters and he drives with them. So I think it was all there on paper, the script, the character was already there. As an actor, it's a privilege because you get to live so many lives in one lifetime. So of course, it's my responsibility to represent an entire community with to the best ability that I can. That does not mean that I would demean them through their secrets or what they have told me. That should not leak on the screen, but to the truest sense of who they are. Mostly the innocence, like Mehru is an extremely innocent, bindas person. She has that will to survive. She has that survival spirit, and that's what I wanted to bring across. Of course, you pick on body language, how you sit. I mean, she would never sit like this, She would be more uninhibited, when she would sit on the floor, her hand on the hip, or, certain lingo. So things like that anyone who would watch it will be like, I know this person, Anybody from that community would watch, I know this person, I've met this person. And people who don't know this community will get a peek into the community and who they are. I think honesty is what drives my performance. Thank you. Next question. Yeah. Hi, Ahana. Straight. This is Vinamru from First Post. So I wanted to ask you that you play an air hostess in the film. And I play a pilot. Pilot, sorry. So we see in the trailer that you and your neighbor, the one problem that you encounter is that you both are bored, sitting at home. So, and then we see the plight of Pratik's character, Shweta's character. So do you feel the people who had it all, the people who had privileged, their problems were very minor as compared to people who had nothing during the lockdown? Hi, Vinamru. I first of all would like to say hi to Satvik. He's sitting right there. Hi, Satvik. Satvik plays my next door neighbor in the film. That's Satvik Bhatia, and he's brilliant in the film. And to answer your question, so during the lockdown, I think everybody, एक meter होता है, सबकी problems का. My anxiety would have been probably my biggest problem, and I'd like to, I'd like to share this with you guys because I have always been the most bindas person. मैं कभी भी किसी को मिलती हूँ, I've been probably one of the most uninhibited person. मैं जोर से हंसती हूँ, बदतमीज से बैठती हूँ, कैसे बात करती हूँ. I have never really thought things through in my life about a lot of things. Until the lockdown happened, I have never lived alone in my life. Even during the lockdown, I was stuck with my sister and her family. So I got to spend a lot of time with my family. In fact, ये हमारे पूरे group में एक running joke है कि अहाना कभी अकेले नहीं रह सकती है. But during when I got COVID twice, second wave में जब वो बहुत ज़्यादा लोगों की death हुई थी second wave में, and I think the anxiety levels were here for every day because हमारे close circles में every day, when the phone would ring, somebody's parent, somebody you knew was, losing their life. Oxygen नहीं था. I still remember, I don't know if you all remember, जब oxygen की कमी हुई थी, तो लोगों को oxygen नहीं मिल रहे थे. And, so unconsciously आपकी anxiety बढ़ रही थी day by day. And I don't think a lot of people were realizing that. What Madhur sir has very beautifully managed to capture in my story
is the loneliness and the anxiety one feels when they are alone. मैं जब मेरा कोविड का आइसोलेशन था, हमारे बिल्डिंग में अलग ही सेट ऑफ रूल्स चल रहे थे. लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे थे, हमारे बिल्डिंग में 21 दिन के लिए उन्होंने बोला था आप क्वारंटीन हो जाइए. एंड आई वाज क्वारंटीन्ड in a house for 21 days. मेरी आंट का घर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर है और मैं वहाँ पर 21 दिन के लिए अकेले रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब एंग्जाइटी फील हुई, कब क्या हुआ, क्योंकि जब मैं 21वें दिन बाहर निकली और जब मैं पहली बार मेरा 6 साल का नेफ्यू है, मैं पहली बार उससे मिली और मैं फूट फूट के रोने लगी. It was just so weird because I had never felt how it is to not be able to meet somebody you love. किसी को छूना, किसी को हाय बोलना सुबह सुबह, किसी को देखना रोज सुबह, मतलब जब आपके घर आपके रूम में चाय आती है या आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है, गुड मॉर्निंग भी बोल देता है. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. और इट वॉज माई बर्थडे द डे आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ क्वारंटीन एंड मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ कह दिया और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ. मेरा झगड़ा हुआ है घर पे, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई हूँ और मैं फूट फूट के रोई हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई लिटरली ब्लैक्ड आउट. एंड और जब उसके बाद फिर मैंने मॉम डैड की तरफ देखा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई एम रियली सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू मी. सो आई रियलाइज्ड आई हैड एंग्जाइटी विद इन मी और वो इतनी बढ़ गई थी कोविड के दौरान और उस आइसोलेशन के दौरान. सो आई कैन इमेजिन व्हाट पीपल हु वर लिविंग अलोन फेल्ट जब वो लोग आइसोलेटेड लाइव्स जी रहे थे, जब उनके लिए मतलब सिर्फ 2 लोग देखना भी बहुत बड़ी बात थी या एक बंदा कोई सड़क पे दिख भी जाए तो बहुत बड़ी बात थी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. Just like mental health, anxiety, loneliness, depression, these are very important conversations in today's times. तो आप इसको ignore नहीं कर सकते इन conversations को. And I think that has been very beautifully depicted in Moon's story with Satvik's character playing her next door neighbor, जो उसकी companionship का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. So I think it's incredible what he's managed to do. May I add to that? Yeah. I don't think you can compare problems. I don't think just because somebody is a commercial sex worker or somebody is a commercial pilot or somebody is a housewife or a 5-year-old child who's doing e-school and not able to go out and play in the playground, I don't think success, happiness or problems can be compared. And that's the whole idea of 4 completely different stories from different backgrounds. So just to add to that. Hi, firstly congratulations to everyone. The trailer looks amazing and can't wait to see the film. My question goes out to Sai. Firstly, it has always been a pleasure to watch you on screen and you add a charm to it every time you come on it. So firstly, thank you for coming back again to our screens and mesmerizing us. My question goes out like, during the lockdown, we all read stories about through the digital screens and through newspapers about everything that was happening around us. We empathized with the other people who had different problems than us. But when you get to live the life of a person from a different strata, even through the big screen, even through this medium of a screen, how did that kind of change your perspective towards the humanity in general, and how did it change you as a person? Thank you for being here. Thank you for your question. Like I said earlier, after lockdown, I think we all have changed. Something in us, all of us, has changed. We are more grateful. We are kinder. That's what I believe. At least I am. And after playing this particular character, I realized how privileged I am. I'm more thankful today. I'm more grateful today. And it was my pleasure, or, it was my honor to, sort of understand and portray the character of a migrant worker and their problems. Some problems I could not even relate to. They were so, क्या बताऊँ, उनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है. So ऐसा भी होता है वाली चीज़ें, realizations बहुत सारी थी during the portrayal of this particular character. So to sum it up, I would just want to say that today I am 200% more grateful for everything that I have, for the air that I breathe, for the food that I eat, for everything. Hello, Mr. Kalra.
Hi, this is Harshada here. Here. Stage right. Hi. I got a one question for you. Like, आपने OTT में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो क्या मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है कि OTT में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, या how do you filter the story or maybe a script? Thanks, Harshita. I think it's a very good question. OTT has expanded the way Indians used to watch content. I think all of us agree. The kind of stories that we as a platform have been able to bring forward, which were not part of mainstream cinema. So what we are doing right now is looking at stories which will connect with the audience. So we're realizing real, relatable, like this one, thrillers, action, some of the layered stories. The characters that you see in some of our stories are much more layered, maybe at times dark, maybe at times complex, which are not a part of the mainstream cinema. And Indians have kind of discovered those characters. The art of content making, movie making has evolved. So as a Z5, we are completely focused on bringing good quality content. I think what has happened is there's a huge quantity of content available in the market right now, but we do apply our filters, which are driven by consumer demand, by data analytics, and obviously our own instinct. And we hope to kind of keep giving you the right kind of content as we go forward. But thank you so much. मधुर जी, आपसे एक पूछना था, मतलब स्टोरी हर बार बताते आपकी आपकी हीरोइन होती है फिल्म की, तो ये हीरोइन को आप ढूंढने कहाँ जाती है, वो क्या आपको कहाँ मिलती है? थैंक यू। नमस्कार। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे जो किरदार होते हैं, मैं एक बार पहले मैं हमेशा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट होने के बाद ही मैं कास्टिंग करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मिली, श्वेता, साई और आहना, और मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा थॉट किरदार रखने के बाद राइटर्स के साथ हम लोग बैठे, एंड देन हम लोगों ने चयन किया कि किस तरह, खास करके उस पे लॉकडाउन जस्ट खत्म होके शुरू हो रहा था, आई मीन टू से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, और उस वक्त पे मैंने फ़ोन किया, एंड मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन इन तीनों का रहा हूँ हमेशा, और जब मैंने फ़ोन किया एंड दे ऑल अग्रीड, मैंने एक नरेशन में दे ऑल अग्रीड टू डू द रोल। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एवरीबडी, इंक्लूडिंग प्रतीक जी। हाँ, प्रतीक के लिए तो मेरे थोड़े से टीम वाले थोड़े से हिचकिचाहट थे कि बोला, सर ये तो बहुत ही सोबो मुंबई का आदमी लगता है, इसको पेज 3 पार्ट 2 में बनाइए, आप इसको इसमें क्यों डालते हो, माइग्रेंट वर्कर में है। तो मैंने कहा नहीं ये मुझे नज़र आता, बोलता हमको तो नज़र नहीं आता। और ख़ास करके जब ये आया ऑफिस में, तो ये मैंने ऐसे पूरे बाल ब्लू किए थे, अजीब तरह के गॉगल्स पहन के आया था, और टैटू पूरे बदन पे, तो बोला सर मैड मैक्स बनाइए आप। तो हाँ, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन था कि ही इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, एंड आई थिंक प्रतीक हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अंडररेटेड, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर, ये ड्यू है तुम्हारा, और दिस मूवी विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर फॉर हिम, कि जिस तरह का उसने किरदार निभाया है, और बॉडी लैंग्वेज जो उसने कैरेक्टर की पकड़ी है, जो मैं खास करके जो माइग्रेंट वर्कर से इनको मिलाया, एंड ही गॉट इट वेरी राइटली, यू नो, द काइंड ऑफ थिंग, एवरीबडी इंक्लूडिंग साई, आहना को एरोस्टिस का मैंने एक रेफरेंस दिया, सॉरी पायलट का, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, पायलट का रेफरेंस दिया, एंड श्वेता के साथ वी वेंट टू कमाटीपुरा, वी इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ सेक्स वर्कर ओवर देयर, तो एवरीबडी जो है वो अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह निभाया है, और जो प्रकाश बेलवाड़ी सर जो आए नहीं यहाँ पे आज, उन्होंने भी जो किरदार निभाया है, जो साउथ इंडियन कैरेक्टर है, जो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा उनका, और मैंने उनको अप्रोच किया, मतलब सर ये रोल है, एंड ही सेड मधुर 100% आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद यू, एंड वो आए, एंड केवल हमने 26 डेज में हमने इस पिक्चर को ख़त्म किया, 1 गो में ख़त्म किया, एंड फिल्म बहुत ही एक अच्छी, कैमरामैन ने हमारी कीकू डीओपी बहुत अच्छा काम किया, रोहित कुलकर्णी म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसमें म्यूज़िक दिया है, एवरीबडी, द होल टीम हैज़ डन अ फैब जॉब, एंड अगेन प्रणव जैन, जयंतीलाल गाड़ा जी, और जी, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन such kind of subject and such kind of things which will definitely go across the globe. Okay. My question is for Prateek. Hi Prateek, over here. Oh, at your right. Okay. Firstly, as Madhu sir mentioned, the type of persona you have is very different from what you're portraying on screen, and that's highly commendable.
Like, I would like to ask you, how was it like, stepping into the shoes of a migrant worker? Like, we all have seen that in the media, but we never saw them, like, in person. So what was that for you? Thank you for your question. It was a very special process for me to get into the skin of this character and to meet the migrant workers that I met. Sir made me meet some migrant workers and उनको मिलके मैं बहुत ही keen observer रहा. जब उनसे बातें कर रहा था, उनके उठने बैठने का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया. उनके हार्डशिप्स थोड़े बहुत पूछे. मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना था. उनको नाराज़ नहीं करना था मुझे, तो बहुत जेनेरिक सवाल पूछे मैंने उनसे. लेकिन काफ़ी बातें हुई और कैसे एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं, हंसते कैसे, बच्चों से कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह. just daily mundane life कैसे जीते हैं. So that was one aspect of getting into the character. Another one was as I mentioned earlier, sir gave me some reference films to watch. A few of them were my mother's. A few of them were very hard-hitting films with hard-hitting characters, and each character had a struggle and a different struggle, which was important for me to watch and understand and observe, so I could, kind of be inspired for my own character that I had to play as Madhav. It's been a privilege and it's an honor to play a character like this. I think मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये किरदार ऑफर किया. in छोटे से I'm happy that I could contribute in whatever small way in telling the story of this migrant worker, because I think it is important for us to know in detail what they went through, and so I would like to dedicate this character to all the migrant workers and the angst they went through, the struggles they went through. Yes. Thank you. हेलो, हाय मधु जी, मेरा That will सवाल. be the last question. Sorry. Okay. मधु जी, मेरा सवाल आपसे है. हाय, दिस इज विशाल अंबानी हियर. सर, जब भी लॉकडाउन की जिक्र होता है और मुंबई में स्पेशली लॉकडाउन का जब जिक्र होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक नाम काफ़ी कॉमन था सर, सोनू सूद सर का मैं बात कर रहा हूँ सर. सर, आपको लगा कि उनकी जो कहानी है, इतने लोगों की मदद उन्होंने की, वो कहानी ये कहानी में आनी चाहिए या फिर ये सारे कास्ट में सर भी होने चाहिए? कभी ऐसा फीलिंग आई सर आपको? देखिए, ऐसा है ना कि जब हमने इसका रिसर्च किया राइटर के साथ बैठ के, तो हमारे बहुत से कैरेक्टर्स थे. मैं सच्ची बोलूँ तो कुछ 12 ट्रैक्स थे हमारे पास, 12. अब 12 ट्रैक्स को एक फिल्म में हम डाल नहीं सकते, टेक्निकली तो होगा नहीं, क्योंकि पिक्चर को हम लोग को एक कॉम्पैक्ट फिल्म था, एक बजटेड फिल्म था. तो हम लोग ने कोशिश की इसको उतना रखने के लिए. जिन्होंने ने कंट्रीब्यूशन किया, सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया. अगर सोनू सूद की बात कर रहे हो या और लोगों ने भी, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरीके से किया है. लेकिन ये बात सही है, मैं आई नो सर्टेन पीपल, जो NGOs थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत मदद की पहले लॉकडाउन में, जो फिल्म स्टार्स नहीं है, जो मीडिया में नहीं है. मुझे लगा उनकी भी स्टोरी बोलनी चाहिए मुझे. लेकिन जब हम फिल्म बनाते तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह की स्टोरी चुने और किस तरह का ये होना चाहिए. और फ्रंट लाइन वर्कर का भी जो मैं बात करूँगा, उनकी भी स्टोरीज थी मेरे पास, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं था. जो हम लोग को ओवरऑल हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, मैं मेरे राइटर्स ने बैठ के, कि नहीं भाई, हम लोग को ये 4 स्टोरी बोलनी है. बोलने के लिए तो मैं बोलता ना, इसके लिए 3-4 सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना मटेरियल है और ग्लोबली हुआ है. ऐसा नहीं कि
महाराष्ट्र में हुआ है या हिंदुस्तान में हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड में हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि जितना सटीक अपने चार स्टोरी है उसी पे कंसंट्रेशन किया, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पेंडेमिक में उनका डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में किया उनका बहुत बड़ा योगदान है, पेंडेमिक में लोगों की मदद की है। थैंक यू सर। Thank you, everyone. I definitely have a question. सोहेल, सोहेल तेरे बिना कंप्लीट ही नहीं A होगा। late comer. Congratulations. आपने बैक टू बैक फ्यू मंथ्स में आपकी बबली बाउंसर वो आपने की, फिर इसके बाद इंडिया लॉकडाउन, इट्स क्वाइट फास्ट। तो क्या बबली बाउंसर वाज ऑलरेडी आपके दिमाग में था या ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली आपने की थी? और बैक टू बैक इट्स क्वाइट फास्ट, यू कैन से यार पहले तो मेरे को 3-4 साल में फिल्म नहीं बनाई तो बोला मधुर जी आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छी बात है, 2 महीने में 2 पिक्चर आ रही हो तो तुम बोल रहे हो कि सर वी आर हैप्पी। मैं happy तो ना? खुश हूँ यार, मैं तो चाहता हूँ अभी और 2 महीने के बाद और एक कुछ वो ज्यादा हो जाएगा सोहेल, वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसलिए आई जस्ट एलॉबरेट ऑन इट। देखिए ऐसा है कि ये पिक्चर हमने शुरू की 2021 में, हमने राइटिंग की इसको 2020 में, लेकिन लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जैसे हमने कहा लॉकडाउन में हमने पिक्चर लिखी, लेकिन 2021 में हम लोग को एक विंडो जो शुरू हो गया था, लाइक बेबी स्टेप चालू हो गए थे, लोगों बाहर जाना शुरू हो गए थे, लेकिन जो बबल में हम लोग शूट करते थे कि सबका RT अपना होता था, कोविड अपना टेस्ट होता था, उसके बाद ही हम लोग वो शूटिंग करते थे, तो लिमिटेड बजट था और एक जो था कम जगह हम लोग को शूट करना था, तो वो फरवरी मार्च में हमने शूटिंग की 2021 में। उसके बाद सडनली सेकेंड लॉकडाउन आ गया, तो सेकेंड लॉकडाउन में तो पूरी पिक्चर रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने एडिट पे हाथ नहीं किया। 6-7 महीने ऐसे चले गए हमारे, तो कुछ नहीं हो सकता, सब ऑफिस बंद, सब जो भयंकर था, पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन बहुत ही भयंकर था, तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बैठे रहे 5-6 महीने तक होना, तो बबली बाउंसर का चालू हो गया। बबली बाउंसर बाय द वे पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, इंडिया लॉकडाउन से पहली स्क्रिप्ट रेडी थी हमारे पास, वो चालू हो गई, तो उन्होंने अप्रोच किया मुझे, कहा कि लेट्स स्टार्ट ये। उसके जब उसका प्रेप चालू किया मैंने बबली बाउंसर का, तभी जाके मैंने पिक्चर को एडिट की अपना इंडिया लॉकडाउन का। उसके बाद सेंसर गए, सेंसर के अंदर उसको हम लोग ने सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट में श्वेता के ट्रैक पे खास करके थोड़ा सा इशू था, तो हमने फिर रिवाइजिंग में गया, तो उसमें टाइम लग गया। और उसके बाद हम रिलीज करना चाहते थे, फिर जयंती भाई, मैं, जी, हम लोग सब बैठे किस तरह से इसको, तो जी का भी ऐसा था कि दे नीडेड अ प्रॉपर विंडो रिलीज करने के लिए भी हम लोग को देखना पड़ता, तो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लाइनअप बहुत थे पिक्चरों के, और उससे पहले बबली बाउंसर का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो बस ये तो 2 महीने में दोनों पिक्चर आई है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है। बबली बाउंसर आपने देखी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इतना सराहा पिक्चर को, और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही अलग फिल्म है, तो 2 अलग फिल्म है। या भारती जी प्लीज, भारती जी, अरे भारती जी, I think it's fair to. भारती जी एक लास्ट, भारती जी, या मैं तीनों की बिहाफ पे ले लेता हूँ मैं तीनों की बिहाफ पे ले लूंगा नहीं, आई थिंक एवरीबडी हैज डन अ फैब जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। Sai Tamankar, Anna and Shweta, they have done absolutely brilliant job. And Pratik Babbar, just like I said, being a big fan of Smita ji, and I gave him references of his mother's film only, Chakra and Pet Pyar Aur Paap, the 2 movies which really where she played in Pet Pyar Aur Paap, she played a rag picker. So I told him कि इस तरह का किरदार है, you have to, and she's done absolutely brilliant, flawlessly. Obviously you must have seen, पता नहीं बहुत लोग ने देखी नहीं होगी picture, but he has done. I think I'm telling you really, when you see Pratik's character in the film, you public जो है हर कोई स्मिता जी को याद करेगा. I think I will sum up with this. Thank you so much. Fabulous. I definitely want to end this with one question for you, since you're on stage with us and you've worked with Sir. आपके लिए high point क्या था, Pranav, to be a part of this beautiful storytelling? Anything that comes to your mind जो आपकी एक memory है? Please take the mic. It's right next to you. Thank you, Shweta. I think every part of the way Madhur sir makes the movie is a memory. Like when I was working with him, when I was assisting sir, I learned so many things that I never knew from behind the camera. He showed me a different world. When he took me on board as a producer, he showed me another side of the world. कि this is, ठीक है, कैमरे के पीछे आप रहते हो, एक as an assistant आप रहते हो. फिर जब as a producer आते हो, you get into such small integrities, and the way sir
taught me all those. That was a memory and a memorable experience for me. And obviously working with such good cast, and everyone has done justice to each character. Like no one, I can't think of anyone else ki हाँ श्वेता का character इसकी जगह कोई और करता शायद से better होता. No, I think Shweta has played it the best. I remember Shweta from Makdi. I still remember, I went to sir, I was like, sir, that actor, oh my God, I've grown up looking at her, literally. Prateek, I've seen his father, बोलना नहीं, प्रतीक को भी तो ग्रो अप किया है, प्रतीक की पिक्चर देख के. राज्य की पिक्चर देखी होगी. No, I was going to say his father. You must have grown up watching Raj Babbar ji's movie, not... I was growing up while Pranav was I think we all believe that being a part of Madhur Bhandarkar's world is like literally saying welcome to the real world, but welcome to one of your best works ever. Please let's clap for this fabulous star cast Madhurism. and India Lockdowns team. May I please request all of you, and thank you members of media for being here, to step outside. There's a wonderful setup. एक फोटो यहाँ पे हो जाए, but बाहर भी. बाहर इंडिया लॉकडाउन का बहुत सुंदर सेटअप है. Please let's go out. Ready? Okay. इंडिया लॉकडाउन हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है ZEE5 पे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड दैट ये उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, ऑडियंस को उस टाइम को रीलिव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम वेयर ऑल ऑफ अस वी केम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू फाइट दिस एंड वी सर्वाइव्ड इट. सम ऑफ अस सफर्ड, बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, लेकिन एक सीख मिली है. और इसीलिए जो 4 कहानियाँ जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं वो बिल्कुल अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, एंड इट गिव्स अ पीक इनटू अ लाइफ, लाइक एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो या पेंटिंग्स हो. इट्स डॉक्यूमेंट्स द टाइम दैट वी लिव इन. India lockdown documents that time of our lives where globally we were hit by pandemic. So like any other art form, I think cinema too is a it has that language of an art form where it's just a documentation of a time that all of us globally sort of shared. I'm very excited. Mehrunisa एक commercial sex worker है from Kamatipura, और उनका business directly affect हुआ था लॉकडाउन से, क्वारंटीन से. एंड उनकी और उनकी कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं जो शायद हमने काफ़ी कम सुनी और पढ़ी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसको हाईलाइट करती है. और हमने काफ़ी रिसर्च किया. द कॉस्ट्यूम दैट वर डन बाय शेफाली, आई थिंक आई हैड टू जस्ट स्लिप इनटू द कॉस्ट्यूम एंड आई बिकेम मेहरूनिसा. बट मधुर सर बीइंग ही such a brilliant filmmaker and he has that eye for detail. So the art directors, cinematographers, Madhur sir और मैं, हम कामाटीपुरा गए थे and we met commercial sex workers and I interacted with them. और उनके लाइफ के बारे में, पैंडमिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी. Some of them were really heartbreaking, but उनका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, it helped me as an actor a lot to build my character. फर्स्ट लॉकडाउन में तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम काम कब रिज्यूम करेंगे, या मेड नहीं आ रही है, आज खाना बनाएंगे या पोछा लगाएंगे. सो लकीली देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स. मैंने फिल्म जर्नलिंग शुरू कर दी थी. आई हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप वन फिल्म मेकर, वन एक्टर, और उनकी मैं पूरे हफ्ते फिल्में देखती थी और उन्हें मैं माई एक्सपीरियंस में उसे जर्नल करती थी. आई रेड द भगवद गीता. आई स्टार्टेड अ व्लॉग सीरीज़. So it was great. I think during the second lockdown, I think it affected a lot of us. उस दौरान मैंने अपनी एक पेंटिंग ऑक्शन किया था और उसे मैंने डोनेट किया था. It was 100 years of Satyajit Ray, and for his birth centenary, being a huge fan and a cinema person, I made a portrait of Satyajit Ray's works and उनका portrait. तो उस पेंटिंग को मैंने ऑक्शन किया था थ्रू माई इंस्टाग्राम, एंड उससे मुझे जितनी भी राशि मिली थी वो मैंने कोविड पेशेंट्स, मेडिकली जो भी एसोसिएटेड है, whoever who suffered from the pandemic, उन्हें डोनेट किया था. So that was my little contribution, but I think just do as much as you can whenever one can. So yeah, that was my experience from lockdown. Thank you so much, and all the best. Thank you so much. 2nd December, India lockdown, ZEE5. Thank you.
Guys, thank you for coming. रोल बोलना एक सेकंड। मैम फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है आपके, जितने भी किरदार हैं इस किरदार काफ़ी डिफरेंट है। या मैं हिंदी की बात करूँ या फिर मराठी की बात करूँ, कितना डिफिकल्ट था आपको इस किरदार में लाना? और पर्सनली मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है आप में आज में, और जो शूट हो रहा है पूरी जर्नी के बारे में क्या कहते हो? डिफरेंट ज़रूर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किरदार में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन किरदार में जाने के बाद जो जो एक्सपीरियंसेस पोर्ट्रे करने थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हार्ट रेंचिंग थे, और उनकी पीड़ा महसूस करके वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग था। और ऐसे किरदार निभाने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किरदार आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको ग्रेटफुल रखते हैं हमेशा। आपके पास जो जो भी सुविधाएं हैं, आप यू आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूलमती ये कैरेक्टर निभाने के बाद मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जो मैं लाइफ जीती हूँ, जो कंफर्ट्स मैं आज एक्सपीरियंस करती हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और सोसाइटी का एक स्ट्राटा ऐसा भी है, जैसी कि मेरी और प्रतीक की कहानी, उनकी ये कहानी लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं, और मुझे स्पेशली इस कहानी के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत प्राउड हूँ। इंडिया लॉकडाउन एक फिल्म नहीं, एक रियल स्टोरी भी है। कई लोगों के घरों में इसका किरदार है, आप रियल लाइफ में किसी का हेल्प किया लॉकडाउन? बिल्कुल हाँ। कई बार ना सिर्फ पैसों की मदद ही मदद नहीं कहलाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल मदद करना भी बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन में ना हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली थी जो लोग अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों को हम रेगुलर इंटरवल्स पे फ़ोन करते थे, उनकी खबर लेते थे, उनसे बातचीत करते थे। और लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लोनलीनेस का, एंग्जाइटी का। सो आई थिंक हर बात पैसे से नहीं तोली जाती, नापी जाती। कई बार इंसानियत भी बहुत जगह काम आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, कितने व्यक्ति से आप मिले जो माइग्रेट पीपल जो यहाँ से अपने विलेज गए, आपने किसी व्यक्ति से उनकी बातें होगी आपकी ड्यूरिंग द शूट ऑन एंड ऑफ? मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मधुर सर की नरेशन इतना तगड़ा था कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आधी प्रिपरेशन मुझसे कर ली थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आना जी, फर्स्टली अ बिग कॉन्ग्रेचुलेट। एक और बार हम आपको देखने वाले हैं, इंडिया लॉकडाउन एक अलग शो लग रहा है, एक अलग मूवी लगी जी। और मधुर सर की हर एक कहानी में कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपके किरदार से मैं स्टार्ट करूँगा, आपके किरदार में क्या कुछ हमें ऐसा डिफरेंट दिखने मिलेगा जो हमने ट्रेलर में नहीं देखा है? काफ़ी कुछ। ट्रेलर फिल्म नहीं होती है, ट्रेलर एक झलकी होती है फिल्म की। जब आप मधुर भंडारकर का नाम लेते हैं, उनका नाम ही सिनोनिमस है हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक सिनेमा के साथ, और उन्होंने बिल्कुल वही करने की कोशिश की है इस फिल्म के साथ। जब हम लोग लाइफ में या हम लोग की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, तो वो आपको उस सदी में लेके जाता है जहाँ पर वो हुआ था। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी जापान गए हों और आपने हिरोशिमा या नागासाकी गए हों, तो आप लोग ने वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सारी चीज़ें बरकरार हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी तो सिटीजन्स पे क्या गुजरी थी, या उस सदी में उस देश पर क्या गुजरी थी। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एक सदी को याद करने का। इंडिया लॉकडाउन मधुर सर की वही कोशिश है जहाँ पर हम लोग ये याद रखें कि कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन रेस हम लोगों ने क्या फेस किया। मेरे कैरेक्टर मैं एक कमर्शियल पायलट का किरदार निभा रही हूँ, और
बिल्कुल हर उस लड़की की तरह जो अपना होम टाउन छोड़कर बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब हम लोग आके रहते हैं अपने घरों को छोड़ तो हम लोग कमाने आते हैं, हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो एक बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की होती है। और मैं बिल्कुल उस तरह की एक ऐसी लड़की हूँ जो एक इंडिविजुअल लाइफ जी रही है। बहुत ही हाई फ्लाइंग, बहुत ही लग्जूरियस जॉब है, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है जब तक लॉकडाउन नहीं होता है। और जब लॉकडाउन पड़ता है तो उसको कैसा अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी। आई रिमेंबर जब हम लोग ने लॉकडाउन झेला था सब लोगों ने, मुझे याद है कि काफ़ी जर्नलिस्ट मुझसे रोज़ बात करते थे और मुझसे बोलते थे कि वो लोग बम्बई में अटके हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एक लोनलीनेस की लाइफ जीना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी कि आप लोगों के साथ रहकर भी लोनली रह सकते हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरी कहानी के ज़रिए। और आई होप कि सबको वो फीलिंग महसूस हो जो मून को महसूस हुई। एंड आई एम श्योर ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर होने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी घर पे बैठ के देखेगा और बोलेगा कि हाँ मुझे ये महसूस हुआ। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रिलेटेबल फैक्टर। जी खैर चांदनी बार मेरी उनकी फेवरेट फिल्म है, बट मुझे फैशन बहुत ही ज़्यादा आई थिंक वाज अ वेरी कमर्शियल फिल्म और उसमें एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी दिखाई थी फैशन वर्ल्ड को लेकर। मुझे लगा कि फैशन वर्ल्ड को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्म दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं। आई लव्ड फैशन, वो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है। उसमें बहुत एक्ट्रेसेस को काम करने का मौका मिला और बहुत ही कमाल की फिल्म थी विद ग्रेट म्यूज़िक। तो आई थिंक उनको रियलिस्टिक सिनेमा और एक रियल और एक कमर्शियल सिनेमा का जो एक संगम होता है मधुर भंडारकर को वो करना बहुत अच्छी तरह से आता है। एंड आई वुड लव टू, अगर मान लीजिए कभी ऐसी फिल्म फ्यूचर में बने, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आना जी एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल शुरुआत में आपकी आश्रम आई, आश्रम इंडिया लॉकडाउन, अच्छा सलाम बैंक की, क्या लगता है 2022 एंड ऑफ द 2022 ये आपका साल होगा? बिल्कुल 2022 बिल्कुल धमाका करके जाने वाला है। दो बहुत ही अच्छी फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्म मेकर्स, लेकिन दोनों बहुत ही फेमिनिस्ट। जब एज आई सेड, जब हम मधुर भंडारकर के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें हमेशा उनकी हीरोइनें याद रहती हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपनी हीरोइनों को प्रेजेंट करते हैं वो उनको ग्लैमरस नहीं दिखाते हैं, बट यू नो ही मेक्स देम वेरी हार्ड लाइक रियल कैरेक्टर्स। और वो आपकी नेबर्स हो सकती हैं और वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अपने रोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो तमन्ना भाटिया को बाउंसर के रोल के लिए लेंगे, यू नो, एज अ फीमेल बाउंसर। और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में जो औरतों को लेकर बहुत हट के सोचते हैं, एंड आई थिंक मधुर सर इज़ जस्ट वन ऑफ देम। द सेम थिंग विद रेवती मैम, एब्सोल्यूट फेमिनिस्ट, बहुत ही प्यारी इंसान है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने प्यारे दो डायरेक्टर्स को आज अपना दोस्त कहने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जो उनको आप कॉल करके उनसे आप घंटों बात कर सकते हैं और वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। एंड यू नो, समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स बैकिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आने वाला शुभ साल आपका ही हो। बिल्कुल, सारे साल हमारे हो। थैंक यू। ये किरदार ऑफ़र किया, ये फिल्म ऑफ़र की। आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयाँ तक हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी। कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी, यू नो। आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों, अलग अलग लोग और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। आई थिंक
especially in India. There's so many different kinds of working classes, and I think मधु सर, जैसे कि ट्रेलर काफ़ी इमोशनल था और इंडिया लॉकडाउन एक रियल स्टोरी है, फिल्म नहीं रियल स्टोरी है। तो हमने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को खोया, जैसे कि गरीब लोगों, कई लोगों के घर में खाना नहीं रहता। करेक्ट वो सही, वो हर चीज़ उसमें दिखाई है पिक्चर में। तो कई लोग कोरोना से घबराते थे। हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी खोए हैं लॉकडाउन में, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनटाइमली डिमाइस उनका हुआ है और मुझे इस बात का डेफिनेटली पूरा दुख है। और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर रहा है वो, और मैं उनको जानता था। जब भी मिलते थे, ही वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। मुझे याद है मैं लास्ट उनसे छिछोरे के ट्रायल था उसके, वहाँ पे मिला था। उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बहुत अच्छा काम किया था। ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस वक्त। और रियली वी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस माने जितना भी उसके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, बहुत कमाल का फ्यूचर था उसके, जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाया, एक टैलेंटेड एक्टर। और सडनली इस तरह की एक चीज़ होना, और एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली वी मिस हिम, वी रियली मिस हिम। एंड मेरे ख्याल से जो जितने उनके फैंस हैं, जो भी उन्होंने किरदार निभाया, जितनी उन्होंने फिल्में की, हमेशा उसका मैंने कहा ना, उसका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। हाँ मधुर सर, जितना प्रॉब्लम में लॉकडाउन में हुआ था, वैसे ही आपको ये फिल्म बनाने में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा? लॉकडाउन में मुझे देखिए, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन में हमने फिल्म लिखी, उसके बाद हमने इसका शूटिंग किया तो जब भी थोड़ा खुल चुका था, लेकिन वो बबल में शूट करते थे हम लोग। बहुत ही प्रोटोकॉल था, क्या क्या करना चाहिए, सरकार के जो भी नियम थे उनको फॉलो करके हमने शूट किया। हर रोज़ हम लोग का टेस्ट होता था। तब शूटिंग में हम लोग यही सोचते थे कि भैया किसी को कोरोना ना हो, और वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितने भी थे हमने 26 डेज शूट किया, इसको अलग अलग लोकेशन में था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ एंड कोई ऐसा इशू नहीं था। सब हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए उसको, और एक अच्छी तरह से वातावरण ऐसे था। सब लॉकडाउन से हम आए थे तो कैरेक्टर भी वो फ्रेश थे एंड एवरीबडी डिड अ फैब जॉब। जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से लोगों ने किरदार निभाया है, किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से हमने शूटिंग की है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आइए।